In the sixth session of this video series, we deep dived into the concept of IoT and how it is changing the world around us. In the seventh session of this Technology for All in English and Hindi, which is a 15-minute video presentation in bilingual and biweekly on our YouTube channel EcoThrust and also on our website www.futureliving.com. We will tell you more about the IoT or the Internet of Things. Now we told you how it connects the IoT devices, connects consumer durables, the non-durables, and the consumer, the maker of the product, designer of the product, and the salesperson of the product. How the consumer demand is transformed into data and passed on to the makers and the designers and the sellers, and how the service is provided in return according to the wishes of the consumer. So the product turns into the consumer service. This entire transformation we explained to you in the last two sessions. Now, if you see, these miraculous changes which has happened in the last decade has happened because of proliferation of these and the mixing of these with storytelling in Hollywood movies, in books, and in various other forms. So humans read this and saw this and wanted this to happen. For example, Batman, our favorite superhero, he used the same technology in the movie Dark Knights, where he fights the Joker with echolocation, a technology where he transfers data and gets data from the smartphones of all the people and uses teleporting to find out how the Joker is located and how he must counter him. So there are many other movies which are like that, but this teleporting is today still not a reality, because what happens in actual is that the IoT data is collected and it goes to the cloud storage and the data analysis is done over there. So it's not that wherever it is collected, the data analysis can be done and we can respond accordingly. But there are investors like Peter Levin of the Silicon Valley who say that one day will come when the cloud concept will go away and the smartphones will have enough data storage to do the work themselves, the storage and the analytics and the entire IoT operation. But till then, we don't have any other way. Of course, what he says is true, because there are certain applications like autonomous cars, driverless cars, which use this edge computers where all the calculation and all the storage is there done on the same location without going to the cloud. This happens because the driverless cars do not have the luxury of time. They have to save time, and that time is crucial for it going on the road safely. A few milliseconds and there could be an accident. So edge computers in autonomous vehicles are already happening, but we don't have the same for other applications.
Now, how did we get to IoT? We always go back and find out that in history there is some technology before the real technology which we use today. So before IoT, there was the RFID tag, the radio frequency identification tag. Now it exists today also. So what this radio frequency identification did was it used the radio frequencies to track and identify items. Now, RFID reader was something which got the data and it got the radio frequency signals and transferred it into the data. And this data could include the name, description, the location, the speed, the type of data, the temperature, and many other things. Everything which any data can have. So they are used in various places like, a modern day passport or a ID card, for example, to store information, or your bank locker and the date of birth, your photo, your passport expiry date, everything it can hold. And there are three types of basic RFID tags, which is the low frequency tag, which is used for animal farms. You can see if you go to New Zealand that all the sheep, thousands of them, will come to the gate when a tourist bus passes, just because it has been prodded by the RFID tag. Those sheep go out to graze and come back on their own without any human intervention. So they are told to go to the gates whenever a tourist bus comes, because the tourists want to see this type of sheep farming. Similarly, if you see the medium frequency tags or the high frequency tags are used mostly in in door locks, in container packing, and in electronic ticketing, and in credit cards, and various other applications. And the cheapest and the most used is the ultra high frequency tags. Now the ultra high frequency tags you will find in a clothing store. So you will find that every cloth you buy, every garment you buy has got a RFID tag. And when you go to the billing counter, the salesperson takes the RFID tag and keeps it away. And if she doesn't, then you will be embarrassed at the gate, where it will make beep signals as if you haven't paid the bill. So you know how much this RFID tag is common today and is there everywhere. Smart devices also use RFID and barcode technologies, and that need scanning. So both are used. And these RFID tags, it's not that it's been put by the storekeeper over there. It's come with the clothing. So if the clothing was made in Mexico and it was stitched in Vietnam, then this RFID tag has taken in all the processes done and it has come to India or Bangladesh or Philippines for selling. So this RFID tag keeps the complete history of how the garment moved. So this is how technology is all pervasive in our consumer world of today, and we will talk about it more in the next session. Meanwhile, we will talk to our friends in Hindi, and we hope that you enjoyed this session and you will come back for the next. Thank you. Bye bye. नमस्कार दोस्तों, ये हमारे वीडियो सीरीज़ के 6 सेशन
जो पिछला सेशन था उसमें हमने आपको बताया था कि IoT क्या होता है और वो किस तरह से हमारे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और कैसे वो हमें जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ों का इंटरनेट उस चीज़ को हमें जोड़ता है उससे, और उससे ही वो जो वो चीज़ बनाते हैं उनको जोड़ता है, उनके डिज़ाइनर्स को जोड़ते हैं, उनके सेल्स पर्सन को जोड़ते हैं, और फिर हम जो उसमें से सर्विस चाहते हैं वो सर्विस का रिक्वेस्ट उन तक पहुंचाते हैं और उसके बाद वो सर्विस बनके हमारे पास आता है। तो इस तरह से कोई चीज़ या कोई प्रोडक्ट धीरे धीरे करके एक सर्विस में बदल जाता है। यही इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ये 7वां सेशन है टेक्नोलॉजी फॉर ऑल इन इंग्लिश एंड हिंदी का, जो कि एक प्रयास है, एक 208 वीडियो का सीरीज़ है जो कि सारे लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ अवगत कराए, उसका प्रयास है। और जो कि कॉलेज में जा सकते हैं या कॉलेज में नहीं भी जा सकते हैं, वो भी ये वीडियो देख के अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, अपने अनुभव बढ़ा सकते हैं और टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है ये समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम 10 टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी की नहीं, एक के बाद एक आपको 10 वो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो कि आपके दुनिया को बदल के रख देगा अगले दशक में। तो ये हमारे YouTube चैनल इकोथ्रस्ट में है और हमारे वेबसाइट www.itsfutureliving.com उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। और इस सेशन में हम ये बात करेंगे क्या ये IoT कैसे आया, इसके पहले क्या था, इसके बारे में हमने आपको बताया क्या IoT जो है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स को कनेक्ट करता है सारे को सेलर्स के साथ, और उसे लाइफ लॉन्ग सर्विसेज में बदल देता है, उसे सारा जीवन भर के सर्विस में बदल देता है। पर ये सब चीज़ें जो है हमारे काल्पनिक थे, ये कल्पना जो है हमारे पास ये हकीकत में बदल गए हैं क्योंकि हमने इसके बारे में सोचा, कुछ पढ़ा, कुछ देखा तब। और ये चीज़ में बहुत बड़ा अनुदान है हमारे हॉलीवुड के सिनेमा का, जो कि इस टाइप की नए नए प्रगतिशील भावनाओं को प्रसार करते हैं। जैसे कि बैटमैन का सीरीज़ तो आप लोग देखते ही होंगे, वो तो हर बच्चा देखता है। और बैटमैन डार्क नाइट्स वाले मूवी में जोकर अपना दुश्मन से लड़ाई जब करता है तब वो यही IoT और वाला टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और इको लोकेशन की द्वारा वो हर एक के स्मार्टफोन से डेटा कलेक्ट करके वो जोकर का लोकेशन पता करता है और अपना लोकेशन से उसे मार देता है। तो ये जो है ये चीज़ पहले मूवीज़ में आई, सिर्फ बैटमैन वाली मूवी नहीं, कई मूवीज़ में आई और उसके बाद धीरे धीरे ये आज के दिन में हकीकत में बदल गया। हालांकि हम अभी भी अपने मोबाइल से सारा IoT के काम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे मोबाइल में इतनी क्षमता नहीं है। हमें इसको क्लाउड स्टोरेज में डेटा को भेजना पड़ता है जहाँ पे वो स्टोर होता है और वहाँ पे एनालिटिक्स होता है और उसका रिस्पॉन्स जो आता है वो फिर हमारे स्मार्टफोन के थ्रू जाता है। पर एक न एक दिन आएगा जबकि हम ये सारी चीज़ हमारे स्मार्टफोन से कर सकते हैं। कम से कम पीटर लेविन करके एक दिग्गज हैं जो कि हॉलीवुड के जो कि सिलिकॉन वैली के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि एक दिन आएगा जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग ख़त्म हो जाएगा और आपके स्मार्टफोन में ही आपके पास इतना स्टोरेज का कैपेसिटी होगा जो कि आप ये सारी चीज़ यहाँ पे कंप्यूटेशन करना और यहाँ पे स्टोरेज करना सब कुछ आप यहाँ से ही कर सकते हैं। तो तुरंत ही आप जैसे बैटमैन जैसा तुरंत लोकेशन चेंज करना होता है तो आप तुरंत ही अपने लोकेशन चेंज कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये
पीटर लेविन ऐसे ही बोल रहे हैं, ये एक्चुअली है आज के दिन में भी कुछ कुछ एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि ड्राइवरलेस कार्स। ड्राइवरलेस कार्स में क्या होता है, उसमें गाड़ी अपने आप चलता है, तो इसलिए उसके पास इतना समय नहीं रहता कि वो अपना रिएक्शन टाइम को इतना रखे जो कि वो क्लाउड में भेजे डेटा और डेटा का एनालिसिस क्लाउड से आए, तो उसमें कई मिलीसेकंड ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए वो एज कंप्यूटर्स वो गाड़ी में ही रहते हैं, जो कि वहीं पे कैलकुलेशन करके, वहीं पे एनालिसिस करके, वहीं पे रिस्पॉन्स इमीडिएटली बता देते हैं कि बगैर ड्राइवर के गाड़ी कैसे चलेगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ अभी भी है, पर कहीं कहीं पे है। और ये एक और सोचने की बात है, जो कि हम इस बार बताएंगे, कि RFID टैग से ये सुना है आया है, ये कैसे आया? ये कोई भी पुराना टेक्नोलॉजी से नया टेक्नोलॉजी आने के बीच में एक इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी होता है। तो ये जो RFID टैग है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, ये करीब 50 साल 100 साल पुराना टेक्नोलॉजी है। यही था IoT के पहले का टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता था, इसमें 3 प्रकार के टैग होते थे। एक टैग होता था लो फ्रीक्वेंसी टैग, जो कि जानवरों पे इस्तेमाल किया जाता था, जो कि उसका रेंज बहुत कम रहता था, कुछ सेंटीमीटर्स रहता था, पर वो महंगे होते थे। फिर एक होता था हाई फ्रीक्वेंसी टैग, जो कि बैंक लॉकर या क्रेडिट कार्ड ये सब ऑपरेशन में यूज़ होता था, पासपोर्ट आइडेंटिफिकेशन ये सब में यूज़ होता है। और एक होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी टैग। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी टैग क्या होता है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी टैग ये होता है जो कि आप शॉपिंग में यूज़ करते हैं। तो एक चीज़ आपने देखा होगा, लो फ्रीक्वेंसी टैग आपने, अगर आप न्यूजीलैंड गए तो वहाँ पे देखे होंगे कि जैसे ही बस, टूरिस्ट बस एक गेट के पास आता है तो सारे भेड़, हजारों लाखों भेड़ वहीं पे आ जाते हैं। वो किस लिए आते हैं? क्योंकि वो RFID टैग से वो मॉनिटर होते हैं, और उसको वो RFID टैग प्रॉड करता है कि यहाँ जाओ, यहाँ तुम्हें देखने लोग आ रहे हैं। तो ये जो हजारों और लाखों भेड़ रोज जाते हैं अपने मतलब घास खाने और वापस आते हैं, ये सारा ह्यूमनलेस है। ये सारे में कोई मनुष्य का उसमें इंटरवेंशन नहीं है, वो सारा RFID टैग से ही होता है। तो वैसे ही आपके पासपोर्ट का जो आइडेंटिफिकेशन है, या आपके बैंक लॉकर का आइडेंटिफिकेशन है, उसमें भी RFID टैग लगता है। और जो आपके कपड़े जैसे कि आप खरीदने जाते हैं कोई सुपर स्टोर में या कोई वहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक कपड़े के साथ एक RFID टैग है। तो ये RFID टैग अगर आप सेल्स पर्सन ने जो आपका निकाला नहीं बिलिंग के समय, तो आपको वो गेट पे बीप 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 करके आपको बोलेगा कि ये आप बगैर बिल के पेमेंट करके ले जा रहे हैं। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि वो सेल्स पर्सन वो RFID टैग निकाल देता है। अब ये RFID टैग आया कहाँ से उस कपड़े में? ये जब कपड़ा बनने लगा था शुरू में, हो सकता है मेक्सिको में या कहीं पे जो जीन्स का कपड़ा बनने लगा था, और वहाँ से वो स्टिचिंग गया वियतनाम को, तो RFID टैग लगे लगे गया उसके साथ, और हर जगह पे उसका डेटा कलेक्ट करते करते रख दिया। और फिर उसने वो बेचने अगर आया है, अगर यूरोप में या अगर इंडिया में बेच रहा है, तो वो RFID टैग उसकी भी डेटा सारा कलेक्ट कर रहा है, कौन सा वेयर हाउस में गया, कहाँ पे शिपिंग हुई और ये हुआ। और जब तक ना वो बिलिंग काउंटर से निकलता है, तो RFID टैग उसका पूरा हिस्ट्री रखता है। तो यही RFID टैग है जो कि अपने IoT के पहले का टेक्नोलॉजी था, और इसके बारे में हम आगे फिर चर्चा करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप इसके जो भी आपको समझ में आए या नहीं समझ में आए वो हमें लिख के भेजें, या तो आप कमेंट्स में भेजिए, या तो आप हमारे चैनल में रजिस्ट्रेशन कीजिए, और उसमें आप ईमेल से हमें भेज सकते हैं रजिस्ट्रेशन करते हुए। तब हम आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स और क्विज नहीं देंगे, हम आपको उसका रिस्पांस भी देंगे।
तो आज के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हम फिर आपको अगले हफ्ते मिलेंगे। थैंक यू।